हाय एवरीवन। तो ये जो हम इंटरव्यू डालने जा रहे हैं, यहाँ पे हमने 5 से 6 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया और डिटेल में हमने बात करने की कोशिश की। थोड़ा सब लोग यहाँ पे जो है ऑफिस से आए हुए थे तो थके वके हुए थे, तो प्रोफेशनल अटायर में हम बैठे भले नहीं हैं, लेकिन इंटरव्यू आपका जो जैसा वहाँ पे होता है पूरा हमने वैसा सिनेरियो प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और 15 से 20 मिनट हर बच्चे को दिया और 5 से 6 लोग का आई थिंक हमने इंटरव्यू लिया है। तो ऐसे हमने बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन ये जो पहला है जिसको हमने अभी पोस्ट किया है, बाकी और भी पोस्ट करते जाएंगे। नोट कर लीजिए जो भी यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। एंड दैट्स इट, आप देखिए आगे इंटरव्यू। वास्तविक, सो गिव अस अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ। Okay, sir. So my name is Vastik Upadhyay. I was born in Bhopal, raised in Raipur, Chhattisgarh. I completed my schooling in Raipur itself. Thereafter, I went to Bangalore to pursue my degree in mechanical engineering, which I completed in 2019-2020. Thereafter, I briefly worked in Byju's as a business development associate, but only for 5 months. I resigned from that post, and after that, I've been preparing for government jobs. And this is my first interview. My hobbies include playing chess, listening to music. I watch football, basketball, and I dance. नाइस। सो आपने बोला आप थैंक भोपाल से हैं, ठीक है? तो जी सर। भोपाल वैसे लाइक टूरिज्म के लिए कैसा है वहाँ पे? सब भोपाल मतलब after my birth, I've only stayed there for 2 years. So majorly, I've been in Raipur itself. क्योंकि I was born in 1996, and after the state dividation in 2000, my family moved to Raipur. So I don't have proper knowledge about Bhopal that much. ओके। ओके। वास्तविक तो थोड़ा छत्तीसगढ़ का आप हमें लाइक बता सकते हैं, क्योंकि वहां पे मैं देखते हैं जैसे जो भी काफी कुछ कोल रिलेटेड और वो सारा काफी वहां पर मतलब प्रोडक्शन और वो सब होता है, तो आप थोड़ा उसमें बैकग्राउंड हमें दे सकते हैं, जैसे कोल इंडिया का और ये सारे काफी प्लांट्स वगैरह है वहां पर, Yeah, तो yes, sir. उसके Yes, sir. उसके रिगार्डिंग। Yes, sir. So basically, Chhattisgarh is considered very mineral rich and very rich in resources such as bauxite, steel plant. Bhilai is very famous for its Bhilai steel plant, which is very famous, which was developed by Russians especially, and it is one of the earliest. And apart from that, coal, the southern parts of the Chhattisgarh, it is very prominent. Many mines are there. Apart from that, I guess in agriculture also it's very rich. It's called the rice bowl of India because Chhattisgarh produces very huge amount of rice and it's exported worldwide. ट्रू ट्रू। एंड लाइक जैसे आपने बताया कि यू हैव डन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो Yes, sir. मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बैंकिंग ये लाइक एकदम डाइवर्स फील्ड्स है, राइट? इनका Yes, sir. एज Yes. सच कनेक्शन नहीं, तो व्हाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और व्हाई एनी सच बैंक आफ्टर मैकेनिकल इंजीनियर? Yes, sir. Sir, there are multiple reasons. Can I list them or do I have to keep it brief? या यू कैन ट्राई टू कीप इट ब्रीफ, बट लाइक एज यू आर Okay, okay, कंफर्टेबल। okay, okay, okay. So one of the primary reason is that while I was doing my engineering, I realized that I am not that sound in technical education, and my strong suit is communication and public dealing. So I took that into consideration, and as I have seen my uncle, he was working for SBI for a long time, and I always looked up to him. So I developed my interest in banking field, and obviously I know SBI is such a big and prestigious institution. So these are the few important reasons why I chose banking as a career option. So you're saying you can't like, acquire the technical skills if you put yourself into it, you put some efforts, you can certainly acquire the technical skills now. And So comparatively, there's a much scope in technical field. I myself is considering to switch to IT right now. So why do you want to come in a sector that doesn't provide that much growth compared to the IT sector if you look years so onwards? sir, in my opinion, sir, growth. Uh, I I technically I can be good. You are completely right in that sense, but it's not in my interest, sir. While I was pursuing my subjects and I learned the concepts, but
I didn't find that interesting. Meanwhile, while I was preparing for banking, and I uh, got to know about the things which you have to do and can do in these fields, and I can surely say banking is a very diverse field. It will give me much exposure. So these are the reasons, because I can definitely try and become a good engineer, but it's if my interest is not there, so I wouldn't be happy doing that. So. Can you please elaborate the things that you thought you can do or not do in the banking sector? So banking is sure, sir. So banking, I think banking allows you the opportunity to communicate with different people from different strata. Such as I have to even converse with a farmer and to a businessman. So this is the wide range of experience which I will get. And apart from that, I get to work in different departments like MSMEs or credit balancing, risk management, asset allocation. So it is a very diverse field. So I think I will be good for this. Okay. Vastvik, have you heard about Yono? Yes, sir. I have heard about, yes, sir. तो अच्छा, तो लाइक क्या करता है बेसिकली योनो, लाइक व्हाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड योनो, डू यू नो अबाउट दिस? Yeah, yes, sir. So as the name suggests, sir, Yono's full form is you only need one app. It's the full form, and it basically covers all the banking services which a person can avail while visiting a branch. It now through the app he can do it from the comfort of their homes. If he wants to shop, if he wants to buy insurance, normal banking services like creating an FD and account funds transfer, all the things are included in one single app. So it was meant for better service, and through digitization, it is possible. Okay, so like you want Uh, to, like we can do everything which a bank do through the Yono. So not everything, but major components which a person requires on a daily basis, like which I mentioned earlier. Not all the things, definitely not all the things, but it comprises of major things. When it was launched, do you know the launching year? No, sir, I'm not currently aware of the launch here, sir. It was launched in December 2017. ओके, टेल मी वन मोर थिंग वास्तविक, जैसे मैं ना एक आपके सामने केस रख रहा हूँ, ठीक है? फॉर एग्जांपल आप सेलेक्ट हो जाते हो एस एन एस बी आई पी ऑफिसर, ठीक है? एंड आफ्टर 2 to 3 years आप बन जाते हो फील्ड ऑफिसर, लोन ऑफिसर, मतलब आप लोन सैंक्शन कर सकते हो, ठीक है? नाउ इन Yes, दिस केस की, जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा आता है और उसको चाहिए लोन, तो आप किन किन yes, पॉइंट्स sir. का ध्यान रखेंगे, या फिर क्या ऐसी चीजें हैं जो सबसे पहले आप उससे मांगेंगे, या फिर क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी किसी को लोन देने के लिए? So firstly, I would ask for the KYC, like identity proof, and all the important documents which are required. Then ओके, after that, I would look up the CIBIL score. If the person has prior loans, if he has managed to repay them on time, and what is the history. And based on these things, and then I will look at the amount which he is asking for, and then I सिबिल will, स्कोर, if the amount. सिबिल स्कोर किस रेंज में है? जैसे मान लीजिए आपको दिखता है तो आपको लगेगा कंफर्टेबल है ये। So in my knowledge, so below 700 is not a good score. So a person who has more than 700 or has never retaken or he has never taken a loan, he will get zero, I guess, zero or -1. I'm not aware of that completely. So I will look at that score, and थर्ड thereafter I पॉइंट will आप बोल make a रहे थे decision. अमाउंट, थर्ड पॉइंट आप क्या बोल रहे थे? The amount, if the amount is more than what are the norms prescribed from the bank policies, then I will ask if he has something to mortgage, or something as a collateral which the bank can ठीक है, बैंक रूल्स। to ensure its loan amount. Yes, sir. प्रतीक, कोई क्वेश्चन पूछना है? I need to ask one final question. Yes, sir. Vastovik, so you said you watch football, right? Yes, sir. So Messi or Ronaldo?
So it's a highly subjective question, but I lean towards Just give Ronaldo me a damn because name. Yeah. Okay, yeah. I lean towards Ronaldo. Yes. प्रतीक कोई क्वेश्चन? Vastavik, you said that you mentioned 3 points, I think, if I heard correctly about Vijay's question. What apart from CIBIL and collateral should we look at in a loan while So I sanctioning a didn't loan, understand. while giving a loan? So Uh, I joined halfway when Vijay's question. From as far as I could gather, it was about the various aspects which a banker looks at before sanctioning a loan. So yes, sir. you mentioned 3 points, but apart from that, can you think of anything more which is, I think, the most important, I believe? So can I take some time? Sure, sure. Okay. So apart from that, I don't have any. Okay, tell Maybe. me, Vastavik, what is the main concern about a bank when it gives any kind of loan or advances to its customers? So the main concern is that it should not convert into an NPA. Main concern is Okay. that it should be paid back in time. Yes, So, sir. how do we ensure that it is paid back in time? I mean, So, how do you know that the customer is going to pay it back in time? So I think for only that reason, collateral or something is taken Collateral is so a that fail-safe if in mechanism. case, Collateral yes, sir, fails. collateral is a fail-safe mechanism. If something goes wrong, then we can use that. But collaterals, they do not always come to your rescue. They do not always liquidate the entire loan. Plus, it's not required that it is of 100% of your outstanding. But see, okay, I correct you here. The main thing about before we give a loan is to see if the individual can repay the loan. So how do we ensure that? What source of income he has? Income That is a source, big income thing. source. Yes, sir, definitely. Yes, sir. Exactly. If he is not employed, will you give him any kind of loan, or if you're going for a business loan, if he does not has a prior experience, a project report, balance sheet, how do you know that his business will prosper? So I would like to add this one pointer that income is a very big criteria in deciding whether or not that should we give a loan to an individual. Okay, sir. Thank you, sir. I will. Okay, sure. That's it. वास्तविक मुझे बस एक और चीज बोलना था कि आपने जो वो बोला था स्टार्टिंग में कि इंजीनियर है एंड आपने फिर बोला कि आपका टेक्निकल एजुकेशन मतलब टेक्निकल पार्ट उतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसकी जगह आप उसको ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं कि बैंकिंग में फ्यूचर आने वाले टाइम में कि टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जिसका एक एग्जांपल हो गया योनो, नेट बैंकिंग, ये सब अगर आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी का ही एक्सटेंशन है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने आंसर में, रादर देन सेइंग कि मेरा ये वाला पार्ट अच्छा नहीं था, उसकी जगह आप मतलब ये Okay, कर सकते नहीं। sure. दिस वाज एन ऑब्जर्वेशन। Exactly. ठीक है वास्तविक, तो आपका इंटरव्यू ठीक रहा। कुछ पॉइंट जैसे श्रीश ने बोले, ये मैं ऐड करना चाह रहा था पहले ही कि उसको निगेटिव पोर्ट्रे मत करो और उसको ऐड कर लो जिससे बैंक का कुछ बेनिफिट हो, ठीक है। और जैसे प्रतीक ने बताया, उसको नोट कर लेना कि अपार्ट फ्रॉम क्रेडिट स्कोर और ये सारी चीज़ें, ये मैटर करता है कि भाई पैसा आएगा कहाँ से, ठीक है। तो सोर्स ऑफ इनकम फर्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरा, नॉलेज में आपने बताई दी कुछ चीज़ें, अपने जो शहर है उसके बारे में आपने बताया कि आप वहाँ पर 2 ही साल रहे थे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात Yes, नहीं, sir. Bhopal. फिर में आपने एक्सप्लेन किया। और दैट्स इट। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, जैसे आपको थोड़ा बहुत बैंकिंग का सबका आइडिया आपने दिया, और ठीक है, चलिए, हो चुका आपसे, ठीक है। ओके वास्तविक, सो दैट वाज इट विद यू, ठीक है। और वास्तविक एक लास्ट चीज बस कि आपने 2 Yes, या sir. 3 स्टेट्स में आप शायद रहे हुए हो जैसा आपने बताया, तो आप उसको लाइक अगर वो आपसे पूछते हैं वाई, तो आप बता सकते हो कि अडेप्टेबिलिटी आपका एक हॉलमार्क है, हम्म, अडेप्टेबिलिटी Okay. टू डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट प्लेसेस,
जिस वजह से अगर बैंक में आपके फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होते हैं जैसे कि होते हैं बैंक में, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसा। ये पॉइंट थोड़ा सही है, अच्छा श्रेष्ठ ने बताया, इसको Thank आप ऐड कर लीजिएगा उसमें yes बताने sir. के बाद में। ठीक है। एंड बी अ लिटिल पॉजिटिव मैन, मतलब नर्वस नहीं होना, वो पूछते हैं तो ठीक है, जस्ट हैव सम कॉन्फिडेंस, वो हाँ। भी ऐसे ग्रिल कर रहे होते हैं, हम्म, मतलब ये सब उनको आपको सिखाया जाएगा, लोन से रिलेटेड सब कुछ आपको, मतलब दे नो कि आपको नहीं आता होगा, हम्म, बट दे टेस्ट योर कॉन्फिडेंस कि आप कस्टमर आपके आगे आके बोलेगा कुछ ऐसे गुस्से में या क्वेश्चंस पूछेगा, तो आपको नर्वस नहीं होना, yes। आपको सिर्फ एक नॉर्मल आंसर देना है, एक मैंने भी जनरल यही आंसर देना है। स्टार्टिंग ओके। में जब आपने की तो यू आर वेरी मच Okay. कॉन्फिडेंट, लेकिन जैसे जैसे फिर प्रतीक और शीश ने क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए तो थोड़ा सा आप नर्वस हो गए थे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, वो हमको पता है कि आपको एग्जैक्टली 4-5 पॉइंट, आप बैंक ऑफिसर तो अभी हो नहीं, तो वो उनको ही पता रहेगा। ठीक है। वास्तविक। ओके। ठीक है। चलो फिर ऑल Yes द बेस्ट। yes sir. आपसे किसी और टाइम ऑल द बात। बेस्ट ऑल द बेस्ट वास्तविक। भाई। ठीक है, Thank अपना you sir. कैमरा ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट वी वुड लाइक टू इनवाइट, अभी हमारे पास हैं कई लोग यहाँ पे, चारुता अपेक्षा में से कोई भी कैमरा ऑन कर सकता है। चारुता आप आइए, स्टार्ट करते हैं आपके साथ। आर यू रेडी? Yes, yes, sir. नो सर, यस सर? Yes, sir. Yes, sir. Sorry, I was थोड़ा ना। थोड़ा सा आपको हाँ नर्वस आप हैं लग रही हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा बस खुल के बोलिएगा, ठीक है। Hmm. सो अ बेसिक क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क कि प्लीज इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ इन ब्रीफ। Yes, sir. So my name is Charuta Pogle. I am 23 years old and I reside in Mumbai. I studied English literature in Ramnarayan Via College, which is affiliated to Mumbai University. And I live in a small family with my mother and my father. My mother is a scale 2 officer in State Bank of India, and my father is a teacher in a junior college in Mumbai. And my hobbies include reading books and writing poetry. ओके। चारुता, डू यू नो समथिंग अबाउट लाइक which person or who should be called a willful defaulter? I think a willful defaulter is somebody who is capable of paying back loans but is not paying them back. I'm not sure about it. Okay. So do you know someone, any famous personality who has done this? I think Vijay Mallya, Yes, Mr. yes. Vijay. Vijay Mallya was the one. Okay. Okay. चारुता, आई वुड लाइक टू प्रेजेंट अ केस आपके सामने कि ऐसे मैं रखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने इनसे अभी पूछा था वास्तविक से, तो थोड़ा सा डिफरेंट वे में मैं आपसे पूछूंगा। आप इस साइड बैठे हो अभी, बीइंग एन ऑफिसर, आप बैठे हो ब्रांच में, ठीक है। तो जब हम लोग स्टार्टिंग में रहते हैं ना प्रोबेशन में, जैसे हम कुछ ब्रांच पे, हम ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, तो समटाइम्स गाँव वाँव, मान लो जो आपकी पोस्टिंग है किसी रूरल ब्रांच में है, कोई कस्टमर आता है और वो छोटी सी बात पे बहुत गुस्सा हो जाता है, मतलब कुछ भी ऐसा है कि वो बहुत गुस्से में बात कर रहा है, वो कुछ सुन ही नहीं रहा है, पासबुक उठा के फेंक दे रहा है या फिर कुछ भी ऐसा कर रहा है, और वहां पे लेडी ऑफिसर आप ही हो, आपके नीचे सिर्फ सबऑर्डिनेट्स ही हैं, तो कैसे सिचुएशन को वहां पे मैनेज करोगे आप? Um, First of all, I mm, asked somebody, I mean, I myself try to solve his queries. If मतलब अगर वो अपने queries बता रहे हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अगर वो नहीं सॉल्व हो रहा है तो I would talk to my subordinates if they are comfortable with um, um, sir, I'm not entirely sure कि कैसे हैंडल करना है इस सिचुएशन को। ठीक है, ठीक है, चलिए हम एंड में अभी बताएंगे आपको। ठीक है, एनी क्वेश्चन? चारुता, आप मुंबई से हैं ना, राइट? तो अभी यस सर। रिसेंटली मुंबई न्यूज में था ड्यू टू दिस अटल सेतु, जो कि एक बहुत यस बड़ा सर। एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किया, आई थिंक अक्रॉस द सी ब्रिज है। तो यस आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग होता है उसका और बैंकिंग का इकोनॉमी में काफी क्लोजली इंटरकनेक्टेड होता है, राइट? आप थोड़ा उसके बारे में कुछ बता सकते हो?
And how does it affect the overall growth in the country? I'm not entirely sure about it, but I think banks provide loans for infrastructure, and I don't know. I am not sure about it. चलो कोई नहीं, वो लास्ट में बताएंगे. एनी मोर क्वेश्चन? प्रतीक है, मंच. No. Charuta, so you said you like to read books. What was the last book you read? The last book I read was A House for Mr. Biswas by V.S. Naipaul. Okay, so you write poetries as well? Yes, sir. Okay, so anything if you have written, would you like to tell us? Okay, so like recite it right now. Okay, so there is a poem that I'd written during the COVID-19 pandemic. It was based on this snap I had seen on Snapchat, which I mean in on Snapchat map. It was in Wuhan where there were people dressed in PPE kits, and there were loudspeakers giving out instructions. So this poem was based on authoritarianism and free will. So it goes like this. Okay. The title Speaker. A box that speaks took away my speech. Eat, I ate. Drink, I drank. Wait, I just read, and I don't know. I don't remember it. Okay, no issues, Charuta. So you talked about COVID-19. What impact did COVID had on the banking industry? Can you tell us about that? Yes, sir. I think okay, it had a huge impact on the banking industry, as people were uh, I mean, as everything was closed, everything was under lockdown, so people were not really starting new businesses. There was no impetus for growth. Even the repo rates had increased to sorry, repo rates were not increased actually. But yeah, yes, but the repo rates were actually decreased to give impetus to growth, I think. But since everything was under lockdown, loans were not being, I mean, there was no credit, there was very slow credit growth, I guess. I'm not really sure. I should read up on it. Okay, no issues, Charuta. Anyone else would like to continue? Do you use like debit or credit card something? Yes, sir, I use debit cards. Okay. So what are the kinds of debit cards do we have? Types of debit cards? I have to read. I have not completed banking awareness yet. Oh, okay, Charuta, so can you tell us the difference between a debit and a credit card? We use, I think credit cards are used for, I mean, credit. So like the money is, we borrow that money on credit for a brief period of time, and then we repay it whenever the cycle ends. And debit cards debit the money that is already in our accounts. So Yeah. Fair enough. Okay, good enough. And okay, so that's it from my side. Himanshu, do you want to ask any question? No, not as such. Okay, so Charuta, apart from reading or writing sometimes, what are your hobbies apart from these two, if you have any? I mean, I do have them, but people told me that they ask
them in detail, so I did not mention them. Yes, I like cycling. I also like painting with watercolors particularly, and I also like singing, but I haven't learned it formally. I started with Hindustani classical vocals, but then I took a break because I wanted to focus on these exams. So, yes. Oh, so you took a break from your hobby for your examinations, right? So how are the exam cycles are going? Like, is this your first interview you are giving, or have you? This is my first interview. This is gonna be your first interview, SBIPO's interview, and this was your first attempt or second or third? Um, Actually, I was very confused at first. So I started preparing for civil services, but I did not go for the exam. I was very confused. I did not know what to do. After that, I took these exams last year, and I got through SBI clerk prelims, and that is when I did, but I did not get through the mains. So I decided to study for it seriously, and I started doing that. I was following your channel, yes, and so I got through most of So the can prelims. we assume that after, if we select you and after clearing SBIPO's final selection, would you still be like preparing for UPSC or civil service examinations? Um, I think banking is a very good sector to work in. So I would prefer working in the banking sector because it has a lot of growth potential. Plus, there's also customer interaction part, which is something I'm quite excited about because it I mean we get to work in various diverse geographical locations, even outside India. So that is something I would prefer. So I'd stick to the banking industry. Okay. तो चारुता, आई थिंक आई एम डन फ्रॉम माय साइड. सो किसी कुछ पूछना है, मैं आपको कुछ रिव्यू देना चाहूँगा, ठीक है, Yes. जो अभी आपका इंटरव्यू हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल, चलिए आपका फर्स्ट था तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, तो आपका वो हम्म रिएक्शन से पता चल रहा है. दूसरा, आपने अपने इंटरव्यू के स्टार्टिंग से लेके और एंड तक अपने हर आंसर में आपने आई थिंक, आई थिंक, आई थिंक. तो मेरे हिसाब से अगर आपको कोई चीज़ आती है तो बताइए, नहीं आती है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है. सोचना भी है तो आप पूछ लीजिए कि सर मैं गेस कर सकती हूँ, ऐसा है. बट आप हर आंसर में अगर थिंक लगाएंगे तो फिर वो उनको ये लगेगा कि आप खुद श्योर नहीं हो अपने किसी भी आंसर को लेकर. ब्लफ मार रहे हो Okay, ऐसा टाइप. so आप लगेगा हर आंसर में आप गेस मार रहे हो, तो ये आप थोड़ा ध्यान hmm, प्लस रखिए. आप आई कांटेक्ट भी मेंटेन कीजिए. आई कांटेक्ट भी मेंटेन कीजिए. okay, आप बहुत साइडवेज में देखते हैं. हम्म. एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इंटरव्यू से पहले थोड़ा मिरर में देख के थोड़ा सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, हाँ, तो ये आपको थोड़ा okay, कॉन्फिडेंस sure. आएगा. सही कह रहा है. ओके. आप खड़े Hmm, होके And बोलो 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, दैट विल श्योरली हेल्प, ठीक है. और दूसरा, थोड़ा सा and बैंकिंग और इकोनॉमिक्स वगैरह के बारे में आप, मतलब अगर अभी टाइम है, मेरे को नहीं पता हाँ, कितना टाइम है, अगर टाइम है तो थोड़ा ब्रश अप करिए, बिकॉज मतलब आप yes, जहाँ जा sir. रहे हो आपको वो तो मालूम होना ही चाहिए. Yes, sir. Yes, sir. मुझे और बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट करना है. Yes, sir. I'll do that. आई गेस विजय शेयर भी and कर देगा उनका टेलीग्राम Charuta, चैनल पे. चलो तो आपने ना एक चीज मेंशन करा कि आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की थी. हाँ, एंड देन आपको मतलब ऐसा चाहिए एग्जाम्स आपने दिए एंड क्लियर होते गया, देन यू केम इनटू दिस. तो मतलब hmm, इट ऐसा लग रहा है ना कि दिस इज नॉट योर मतलब नेचुरल चॉइस, ये आपने ना right, एक तरह से, right. Hmm. तो उस चीज को I'd थोड़ा. actually not mention civil services in the interview. I'd stick to mentioning um क्योंकि कि देखिए हाँ, मैंने बैंकिंग का आप बैंकिंग मेंशन सेक्टर करो. स्टार्ट किया था, मेरा मुझे नहीं बेस्ट ये हुआ. लग रहा है ना कि अभी आपकी एज भी बहुत नहीं है, 22-23 आपने बताया. फर्स्ट Hmm. सेकंड अटेम्प्ट जो भी है एग्जैक्टली. आप हो सकते हो. यूपीएससी को या तो बीच ख्याल से बीच में ना लाओ, प्रतीक सही कह रहे हैं, तो कोई Hmm. अच्छा ही रहेगा मेरे हिसाब से. Hmm. और एक चीज जो आपने जो हमने आपसे पूछी थी डेबिट कार्ड के टाइप्स, वो पढ़ लीजिएगा. वीजा, मास्टर, रुपए, या Hmm. कोई कार्ड होते हैं, सब देख लीजिएगा. Yes, और sir. छोटी सी चीज आई थिंक ये रह गई थी कि कैसे वो जो
फ्यूरियस सिचुएशन थी कि कस्टमर अगर एंग्री हो तो कैसे मैनेज करें, तो हम्म ज़्यादा पॉइंट आप ये देख सकते हो। और चाहे को ध्यान रखना कि जैसे मान लो कोई भी कस्टमर है, बहुत सारे कस्टमर आते हैं, सबसे पहले शांति से बात हम्म करिए, सर आप प्लीज़ बैठ जाइए। अगर उनको उनकी सर्विस हम किसी भी तरीके से दे पाएंगे तो वो फ्यूरियस जो उनके साथ वो दिक्कत है वो नहीं होगी, तो उनको हम्म आप अश्योरिटी दो कि आपकी सर्विस होगी। आपको 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा, 1 घंटे लगेगा, लेकिन आपको जो भी काम है आपका होगा। अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, मान लीजिए इन केस कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम अगर होती है, उनको आप साफ साफ दिखा के एक्सप्लेन करिए। कई बार ऐसा होगा कि आप मान लीजिए बाहर से जाएंगे, पोस्टेड रहेंगे, तो जैसा आपने बोला था सब ऑर्डिनेट को यूज करके उनको जो लोकल लोग हैं उनसे उनकी लैंग्वेज में अगर आप बताना चाहेंगे, बता दीजिए कि हाँ भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है, आपकी डेफिनेटली हेल्प की जाएगी, पानी पिलाइए, उनको अच्छे से ट्रीट करिए, तो दैट कैन बी वन ऑफ द सॉल्यूशन जो आप बता सकते हो। ठीक है, सो ओके ऑन दिस सर, नोट थैंक चारुता, हाँ वी वुड लाइक टू यू। क्लोज हियर। ठीक है, बंद करेंगे अभी आपके साथ। एंड अपना थैंक एक्सपीरियंस, यू सर। चलिए अपना एक्सपीरियंस जैसा भी आपको लोग को, आपको जैसे ऑल द बेस्ट चाचा। हाँ जैसे तैयार ऑल करिए। द बेस्ट चारुता। ऑल द बेस्ट, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए, तो चारुता और वास्तविक के साथ हमने अभी यहाँ पे खत्म किया है। My कोलकाता hobby में is कहाँ से बताया आपने? वेस्ट बंगाल में, कोलकाता से? yes, sir. ठीक है। And my hobby is knowing about technological gadgets. And I live with my father, who is currently working in Bajaj Alliance as a branch operation head, and my mother, who is a homemaker, and my younger sister, who is in class 11. अच्छा अच्छा, तो आप गैजेट्स फ्रीक कह सकते हैं अपने आप को, तो किसको फॉलो करते हैं यूट्यूब पे आप? किसी को ऐसा कोई आपका फेवरेट टेक्निकल यूट्यूबर कुछ? Yes sir, I had some मेरा कुछ था पहले, अभी मतलब मैं टेक्निकल गुरुजी को ज्यादा फॉलो करता हूँ। और अच्छा। अभी तो और भी कोई मतलब आ रहा है, बहुत सारा टेक्निकल चैनल्स आ रहा है, तो हम्म। ट्रैकिंग ट्रिक और टेक्निकल गुरुजी मतलब बर्नर चल वगैरह। रहा है अभी, डिपेंडिंग हाँ भैया, टेक बर्नर। ठीक है ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आपका टेक्निकल गुरु जी जैसे। अयान, दो टर्म होते हैं, एक बैंक, एक एनबीएफसी, क्या सेम होते हैं, कुछ अंतर होता है इनमें? No sir, the NBFC and bank has the basic difference that banks can deal with cash, banks can accept the deposits, but the NBFCs cannot accept deposit. एनी अदर डिफरेंस? I am sorry sir, right now I cannot remember anymore. कोई बात नहीं, कोई बात। डीडी इशू कर सकते हैं क्या एनबीएफसी? I'm not aware about. I'm sorry sir, I'm not aware about this question. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। आपने ये क्या बोलते हैं, जैसे आप एसबीआई का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, तो एक पब्लिक सेक्टर बैंक की कैटेगरी में आता है। तो इसी तरीके से दो तरह के बैंक्स आपके होते हैं जो मेजर कैटेगराइजेशन करें, तो एक आपका पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, एक आपके प्राइवेट बैंक्स होते हैं। Hmm. दो अंतर आप बता दीजिए इन दोनों बैंक्स में क्या होता है। So in case of public sector bank, the government has a ownership of 51% at least, ठीक। and in case of it's a, प्राइवेट बैंक्स? it's a private banks, there is no such mandates about the government holding. And talking about public sector banks, those were actually scheduled by RBI's second schedule of around on, I can't remember the year exactly, but that was being the public sector banks, they are being, or the scheduled commercial banks, they were अच्छा defined under the RBI schedule by the RBI's second schedule. And the private sector banks were created after the ओके। private sector banks was opened after 1990. तो जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट बैंक है, लाइक मान लीजिए एक्सिस बैंक है, तो क्या वो शेड्यूल Hmm. कमर्शियल बैंक में नहीं आता? Yes, certainly that bank is. नहीं आता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक में या नहीं आता, ये पूछ रहा हूँ, ये सुनो। Yes, sir, it comes under scheduled commercial bank. आता है, अच्छा अच्छा, ठीक Yes. है। ठीक है, प्रतीक कुछ पूछना है आपको इनसे? ओके, सो अयान, मैंने आपका इंट्रोडक्शन मिस कर दिया। आपका बैकग्राउंड कहाँ से? So can I give it again? ब्रीफ में दीजिए। या श्योर, प्लीज। Okay. Yes, sir, I have completed my post-graduation in Masters in Life Sciences from Presidency University. And my hobby is knowing about technological gadgets. And my father works in Bajaj Alliance as branch operation head.
and my mother is a homemaker, and my sister is currently studying in class 11. ओके सो एक चीज आप मुझे बता सकते हो, आपने एसएमई के बारे में सुना? एसएमई S&P, yes sir. नहीं, सॉरी, एसएमई। SME, yes, I have heard. हाँ, एसएमई के डेफिनेशंस क्या होते हैं, आप बता सकते हो मुझे? So I cannot exactly define SME, but I can understand what SME is. Can I tell that? ठीक है, वही बताइए। Yes, sir. So, sir, in case of the non-performing assets, so to define that, it is actually the NPA is something for which the EMIs or the payments is not coming after 90 days. But for banks to already predefine something or to identify something to go as a to become it of NPA, we defined something as SMA 0, SMA 1, and SMA 2. For the SMA 0, the criteria is the payments are not coming for 0 to 30 days. And for SMA 1, it is 31 to 60 days. And for SMA 3, it is, sorry, SMA 2, it is 61 to 90 days. And if the payment is ओके still not coming for that loan account, then it is declared as NPA. ओके अयान, आपने एसएमए तो बता दिया, एसएमई क्या होता है? एसएमई, आई वाज आस्किंग एसएमई। एंड आपने एसएमए बता दिया, एसएमए ए। Okay, so I'm sorry, sir, I'm not aware about that SME. कोई नहीं, आपने एसएमए एसएमई का नाम नहीं सुना आपने? इंटरप्राइजेस सुना नहीं है? एमएसएमई। चलिए, MSME, oh अच्छा, sorry, MSME, या sorry. एमएसएमई Small का and आप micro. डेफिनेशन बता सकते हैं? Medium, small, micro enterprise. Yes, small micro enterprise, I forgot about it. चलिए, कोई बात नहीं। पीसीए के बारे में सुना है आपने? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कुछ है तो? Yeah, but right now I cannot exactly remember about that. यू डोंट रिमेम्बर? I'm sorry. बेसिल नॉर्म्स सुना है आपने? बेसिल नॉर्म्स Yes, sir. क्या है, ये कौन से नॉर्म्स है? The Basel norms are actually defined by the RBI, in which the banks are. कोई नहीं, कोई The नहीं। Basel norms are actually defined by the BIS organization. It is being notified to all its member central banks of any countries. Yes. And in that, the banks are being allowed or are being instructed to keep a certain percentage as their loan profile ठीक है, to 30% maintain. ठीक। बैंक में मतलब जैसे कोई भी बैंक होती है तो बैंक की जैसे ब्रांचेस होती हैं, उसमें एक कोई ब्रांच होती है जिसको बोला जाता है करेंसी चेस्ट। सुना आपने? No, sir, I have not heard about it. कोई बात नहीं। Alright, Ayan, तो लाइक कोलकाता जो है, जैसे वेस्ट बंगाल में बहुत मतलब इनफैक्ट शायद सबसे मेजर सिटी वही है। उसके अलावा एक आध और है, मतलब आसनसोल वगैरह, वो भी ड्यू टू एनटीपीसी एंड ऑल दैट। बाकी मेजॉरिटी कोलकाता है। तो डू यू फील लाइक द डेवलपमेंट इन बंगाल particularly is partly skewed like heavily in favor of Kolkata and rest of the Bengal में उतना नहीं है? और अगर उतना नहीं है तो उसका रीजन क्या आपके हिसाब से? So I do not think the development in Kolkata is actually skewed. It is the West Bengal is under holistic development, but a few major urban areas are being left for some reason. But its overall development is, I can see in West Bengal, like in every state. What you are trying to say is that it is equitable, right? Yes, sir, it is equitable. All right. I am like, why banking? Why SBI? So because after when I was in my second year of my graduation course, I was trying to explore some. I was exploring the government examinations back then, because in my course in particular there were no such options for the placement opportunities. And also, if placement occurs, then also it is a hectic procedure. It's a long journey to get any job in an industry, and also the salary package is actually quite lower. It is actually not that much lucrative. So that is why I was I was exploring the government jobs opportunities, and there I found banking.
And so then I chose banking. I explored, I studied about banking, the job profile and its growth and opportunities. And so that all those the points I have seen or the opportunities I have seen, it's actually much appealing to me. Like I can work in this bank, and the banks will also give me a lot of growth and opportunities through which I can prove myself and I can use my skills to grow more in banks. ओके That's why I chose bank. ठीक है, बढ़िया रहा आपका इंटरव्यू। लेकिन अयान, थोड़ा सा मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू देना चाहूँगा आपके लिए। थोड़ा सा प्रिपरेशन आप करिए बैंकिंग वैंकिंग अवेयरनेस को लेके, और थोड़ा करंट अफेयर्स को थोड़ा अभी कम प्रिपेयर्ड हो आप, ठीक है। बाकी अपने इन क्वेश्चंस के लिए कि क्यों आना है, ये सब तो आपने ठीक है जवाब दे दिया, अच्छा है। लेकिन टेक्निकल टर्म्स पे जो वो रहेंगे बैंकिंग अवेयरनेस को लेके, और या फिर जैसे शीर्ष ने पूछा, तो थोड़ा आपको तैयार रहना होगा, ठीक है। तो ये सर कन्फ्यूज हो गया था अभी थोड़ा बहुत। थोड़ा कंफ्यूज हो गया तो थोड़ा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट टाइम आपने जैसे बैठे हो ना ऐसे लोग के साथ, तो मतलब सबके साथ तो होता है। इसलिए हमने एक बार आपको ये मौका भी दे दिया है कि एटलीस्ट आप एक जो डर है ना वो खत्म हो जाए आपका। अब आपका काम ये है कि आपका इंटरव्यू कब है वैसे? 24th। 24 को ही है, तो अच्छे से दो। 24 से पहले अगर हो पाया तो हम एक बार कॉल पे कनेक्ट करेंगे, तो मैं आपसे फिर से रिव्यू लूंगा 22 को, ठीक है। बढ़िया से तैयारी करो। थैंक यू तो सर। अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए। So ओके, all the best, Ayan. ऑल द बेस्ट है। थैंक यू भाई। All the best, भाई। All the best. All the best. तो अपेक्षा, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं। तो Hello, sir. हेलो अपेक्षा, कैसे हैं आप? Not prepared, but okay. चलिए, पहली बार इंटरव्यू दे रही हैं या फिर मतलब एसबीआई पीओ का आपका फर्स्ट अटेम्प्ट? No, I have given interview, SBI PO interview last year as well, IBPS PO as well, but banking awareness थोड़ा brush up करना रह गया था, तो now I am a little nervous, इट्स ओके, आपने तो इंटरव्यू एक but बार I'll brush up. ठीक। कहाँ पे था आपका, किस जगह इंटरव्यू दिया था आपने? मुंबई में था सर, मुंबई में था। मुंबई में दिया था, और IBPS में, महाराष्ट्र में रहती हूँ, तो पुणे में IBPS और मुंबई में SBI का हुआ था। तो अपेक्षा, आपको क्या लगता है कि मतलब पिछली बार क्या क्या मिस रह गया, क्यों नहीं हो पाया आपका इंटरव्यू वगैरह में? डर गई थी सर, बहुत डर गए थे। असल में जब वो, मतलब मेरा एक वीक ऐसे लगता है मेरे को कि स्टॉक मार्केट वगैरह जब वो पूछते हैं, तो वहां पर मेरा कंफ्यूजन होता है। अभी भी मेरे को उसको कल का, मतलब आज साइकोमेट्रिक देने के बाद मन में था कि कल का पूरा दिन वो ही पूरा पढ़ना है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। पर वही क्वेश्चन उन्होंने मेरे को पूछा, और एक, सिंस यूपीएससी का बैकग्राउंड है, तो एक क्वेश्चन आया था कि अंटार्कटिका में कौन सी वुमेन फर्स्ट टाइम गई थी, तो वो नहीं पता था। एंड ऑब्वियसली मतलब वो एकदम ही बाउंसर था कि ये क्या पूछ लिया अचानक से। और फिर कोई कंपनी वैल्यूएशन के ऊपर पूछा, फिर मनी मार्केट के बारे में पूछा, उसके इंस्ट्रूमेंट्स पूछे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पूछा। तो इंस्ट्रूमेंट्स तक ठीक था, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में उन्होंने वो 5 लाख वाला जो एक ये होता है वो पूछ, वहां फिर डर गए सर, फिर ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ कर दिए अब नहीं आएगा। फिर पसीना पसीना, फिर वो चेयरमैन सर भी बोले कि नो नो, यू नो द आंसर, डोंट वरी एंड ऑल दैट। फिर एनपीसीआई पूछा तो देन आई कवर्ड इट, बट मनी मार्केट में आई वाज वेरी नर्वस। मतलब आपका इंटरव्यू डायरेक्शन में गया, फिर वहीं पे थोड़ा ड्रैग होता चला गया, राइट? हम्म। चलिए, अब इतना बता रहे हो तो आई थिंक थोड़ा पढ़ के आया पाए होगे। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट तो दो। मनी मार्केट के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। हाँ, मैं यही बोलना। चलो, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, ओके। मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में डिफरेंस क्या होता है वैसे? टाइम का डिफरेंस होता है सर। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, और कैपिटल मार्केट में 1 साल से ऊपर का डिपॉजिट होता है। कौन सा ज्यादा रिस्की होगा हमारे लिए? हमारे लिए ज्यादा रिस्की मनी मार्केट होगा सर। अच्छा अच्छा। गलत। आप मुझे एक बात बताइए, अपेक्षा आपका नाम है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर बर्थ प्लेस जमशेदपुर झारखंड है, पर हम्म। मैं अमरावती महाराष्ट्र में बचपन से यहाँ रहती हूँ, सिंस माय फादर वर्क्स इन सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे में क्या करते हैं वो? CTI है, चीफ टिकट इंस्पेक्टर। क्या काम होता है उनका? टिकट इंस्पेक्शन का ही काम होता है मतलब?
हाँ, टिकट इंस्पेक्शन का ट्रेन में होता है अच्छा अच्छा टिकट अच्छा। चेकअप। तो आप मुझे एक बात बताइए, जैसे अमरावती किसी चीज़ के लिए फेमस है, मतलब वहाँ पे टूरिज्म वगैरह कैसा है? अमरावती हिस्टोरिकली फेमस है। वहां पर रुक्मिणी जी का मायका कहा जाता है अमरावती को। एंड सेकेंड थिंग, हमारी जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी प्रतिभाताई पाटिल, वो भी अमरावती से थी। और थर्ड, अच्छा, अगर ज्योग्राफिकली और इकोनॉमिकली देखा जाए तो कॉटन का काफी अच्छा प्रोडक्शन एंड मार्केट भी वहां पर काफी अच्छा है। कॉटन के लिए। ठीक है। और आपने, आपका बैकग्राउंड, आपने क्या किया है ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन सर मैंने बीएससी किया है कंप्यूटर साइंस फिजिक्स एंड मैथ्स के साथ। हम्म। और पर यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे थे तो साथ साथ मैंने पीजी भी किया है विथ माय ऑप्शनल सब्जेक्ट दैट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है। श्रीश, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते अपेक्षा, आप अमरावती से हैं, सो हैव यू हर्ड अबाउट अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट? अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, जी सर, बुद्धिज्म से रिलेटेड है वो। और उसमें बुद्धा को काफी सीरीन और शांति पीसफुली जो पोर्ट्रे किया जाता था, तो उसमें अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो दिखाया। ठीक है। अपेक्षा, आप मुझे बता सकते हो लाइक मनी मार्केट? मैं मतलब ज्यादा डीप में नहीं पूछूंगा बिकॉज आई थिंक शायद अभी आपको प्रिपेयर करना बाकी है, बट इसका इकोनॉमी की ग्रोथ पे क्या इफेक्ट होता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों का? कैसे सर, ये मनी मार्केट और पॉजिटिवली? कैपिटल मार्केट दोनों में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, जैसे कि मनी मार्केट में टी बिल्स फॉर एग्जांपल यूज किए जाते हैं। तो वो अलग अलग विद इन ईयर उनका जो ये होता है पीरियड, 91 डेज 180 डेज जो होता है। हैं? और कैपिटल मार्केट में बॉन्ड्स होते हैं। तो ओवरऑल लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए इनके इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं हम लोग यूज करते हैं। और किसी भी गवर्नमेंट या किसी कंपनी को अगर पैसे की जरूरत होती है तो फिर वो बॉन्ड्स भी इशू कर सकते हैं इन मार्केट्स में। ठीक है। अपेक्षा, आप मुझे बता सकते हो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किसे बोलते हैं? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज आरबीआई सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, एंड लेंडर ऑफ इंटरमीडिएट रिजॉर्ट? दिस आई डोंट नो सर, आई एम सॉरी। इट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जस्ट टू कीप इन माइंड। थैंक यू सर। ओके। अच्छा। एंड हाँ, पूछो। नहीं नहीं, मुझे कंटिन्यू प्लीज। अपेक्षा, एक बात बताइए, जैसे शेड्यूल्ड बैंक, जैसे मान लीजिए कभी खुलता है या फिर खोलना होता है, तो उसके लिए पेड अप कैपिटल चाहिए होती है। हम्म। कितनी जी मिनिमम सर, रिक्वायरमेंट होती है? 5 लाख रुपीज लगती है। 5 लाख रुपीज जो होते हैं जरूरत होती है अगर आपको शेड्यूल 2 में आगे के आना होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। एक बात मुझे आपको ऐसे ही पूछूंगा मैं आपसे, फैक्चुअल क्वेश्चन है। नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट आपने सुना है जी सर। क्या? नॉस्ट्रो अकाउंट में सर, जैसे फॉर एग्जांपल आर अकाउंट विथ देम, तो अब देम। हमारा जैसे एसबीआई विथ अनदर कंट्रीज बैंक, जैसे डीबीएस बैंक है या कोई सिटी बैंक है, तो हमारा एसबीआई सिटी बैंक के साथ एक वहां पर अकाउंट खोलता है। और वॉस्ट्रो में अपोजिट होता है, वो वाइस। लोग हमारे बैंक के साथ ओपन करते हैं। ठीक ठीक। ठीक है। आप जमशेदपुर से आप रही हैं ना, आपने जी, बताया। जमशेदपुर में कोई ऐसी फेमस चीज़ है क्या? बहुत फेमस है जमशेदपुर किसी चीज़ के लिए? टाटा स्टील के लिए फेमस है सर। हाँ। जमशेदजी टाटा जी के लिए भी फेमस है। कौन थे वो जमशेदजी टाटा डी? जमशेदजी टाटा बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द फाउंडर ऑफ टाटा स्टील थे। द फाउंडर ऑफ टाटा स्टील इन जमशेदपुर जिनके नाम से है। हम्म। एंड ताज जैसे भी जो बिल्डिंग्स है उनका भी, उनमें भी योगदान करने के लिए बहुत बड़ा नाम थे। उनको पायनीर कहा जाता है, मतलब हमारे इंडियन बिजनेस की। पायनियर ऑफ, राइट। एनी क्वेश्चंस?
अपेक्षा, इफ आई मे, जी सर। आपने बोला आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो कैन यू जी टेल मी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एसबीआई अ बिट? जी सर। 1921 में सर इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है बना था। तीन तरह के बैंक्स को अमेलगमेट कर कर एंड फिर उसके बाद में 1955 में आफ्टर इंडिपेंडेंस वी फाउंड द नीड टू नेशनलाइज अ बैंक, टू हैव अ बैंक ऑफ दैट। उतना बड़ा एक बैंक चाहिए था जो पब्लिकली हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट नहीं, संभाल पाए। सो दैट इज वाई हम लोगों ने उसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांसफॉर्म करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया 1955 में। ओके, एंड इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई में, मुंबई। ओके। अपेक्षा, एसबीआई की टैगलाइन आपको याद है क्या? कोई टैगलाइन? बैंकर टू एवरी इंडियन सर, ठीक है, हाँ प्रतीक कुछ पूछ रहे दिस आई रिमेम्बर। एसबीआई का, ओके, एसबीआई, लेट्स लीव इट। आप मुझे ये बताइए, मार्केटिंग एंड सेलिंग के बीच में डिफरेंस आप बता सकते हो क्या? एग्जैक्टली सर मुझे नहीं पता, बट इफ यू परमिट आई कैन गेस, श्योर Yes. श्योर आई कैन टेक अ गेस। मार्केटिंग में श्योर। सर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको बताने होते, एक्सप्लेन करने होते कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ कार्स हैं, तो मैं बताऊंगी कि मेरे पास ये कार्स हैं, ये चीजें हैं, उनमें ये फीचर्स हैं। एंड सेलिंग में आई पुट मोर एफर्ट एंड सेल इट, आई थिंक सो, आई एम सॉरी। ओके, मार्केटिंग में बेसिकली क्या करते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे आप बैंकिंग में होगे ना, तो इट्स मोर अबाउट सेल्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि चाहे आपको मतलब क्रॉस सेलिंग इनकम बढ़ाना हो या बैंक के प्रोडक्ट्स को आगे पिच करना हो, तो मार्केटिंग एंड सेलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग दीज डेज। तो मार्केटिंग जहाँ पे, व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग ना, हम एक कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट हमारा हम पिच कर सकते हैं। तो सेगमेंटेशन ऑफ कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेर एज सेलिंग में आप जो भी प्रोडक्ट आपके पास है, आप उसको मतलब एक तरह से shove down the throat of the customer. It is selling is considered as a negative process, whereas marketing is considered as a positive approach. Yes. थैंक यू। Okay. चलिए अपेक्षा, आपसे बात करके इंटरेक्ट करके काफ़ी ठीक लगा मुझे तो मैं अच्छा था। आप टेक्निकली काफ़ी साउंड हो, आपको नॉलेज है काफ़ी। बस स्टार्टिंग में मैं देख रहा था कि आप सेटल होने में थोड़ा टाइम लेते हो, आप थोड़ा नर्वस थे, बाकी ठीक है। और मुझे ये लगता है कि अगर आपका इंटरव्यू का स्टार्टिंग पोर्शन अच्छा चला जाए ना, तो एक बार आप फ्लो में आ जाते हो तो यू गो रियली हैंड इन हैंड, अच्छा आपका हो जाता है। ठीक है। अपेक्षा, और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आपको बार बार यूपीएससी प्रिपरेशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से एसबीआई इंटरव्यू, Yeah, exactly. बिकॉज मैं भी यही बोलने वाला था कि सर वो, हाँ if मतलब इसमें you are not मुझे एक comfortable with चीज it, हाँ, पूछनी थी कि जैसे अगर मैं यूपीएससी नहीं बताऊंगी सर, तो मैं गैप कैसे ये करूंगी, जस्टिफाई करूंगी? गैप ज़्यादा है आपका? बिकॉज मैंने, जी आप सर, बोलो मैंने कि इतना ही आप है। 3 साल। काफी सारे हाँ वही, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आपने अप्लाई करा था, मतलब यूपीएससी आप स्पेसिफाई करते हो ना, तो फिर मतलब उनकी हाँ, कि एक्सपेक्टेशंस आप बोल आपसे सकते हो बढ़ जाती आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई सब में आपने हाँ। किया था, अच्छा। क्योंकि यूपीएससी एंड में फिर हिस्ट्री ऐसा हो वगैरह जाता है तो कि आई वुड आपका वहां पर सीरियसली से कि हुआ, उसके बाद आप हमारे पास आए, विच बेसिकली मीन्स कि आप हमें एज अ सेकंड वो ट्रीट कर रहे हैं ऐसा। एंड हिस्ट्री ऑप्शंस वगैरह तो आप अवॉइड ही करो, क्योंकि अगर कोई सामने वाला पैनलिस्ट थोड़ा हिस्ट्री का एंथुजियास्ट रहा ना, तो ही विल अननेसेसरी स्टार्ट मतलब पिकिंग योर पॉइंट्स। और राइट। हिस्ट्री सच अ वास्ट सब्जेक्ट ना कि हर किसी को हर चीज नहीं मालूम हो सकता है। वही, तो वो उसने कुछ राइट। पर्टिकुलर वो पढ़ के आया होगा, वो उस पे ही पिक करते रहेगा, तो दैट वुड बी मतलब आपके लिए तो थोड़ा क्या मतलब कॉन्फिडेंस लो डाउन हो जाएगा कुछ शुरू शुरू में। गॉट इट। ठीक है। चलिए और सर अटेम्प्ट बताना होगा, मतलब ऐसे बताऊं कि मैंने पिछले साल भी इंटरव्यू दिया था या नहीं बताऊं? हाँ वो बताओ, आप बता सकते हैं। कोई दिक्कत वो नहीं, आप बल्कि अच्छा ही नहीं, रहेगा। वो तो मैंने उल्टा स्टार्ट आपके किया, फेवर में ही जाएगा, हाँ, क्लियर हो जाएगा। कि मैंने सिर्फ आपने स्टार्ट ही बार नहीं बार किया कि आपने इंटरव्यू आप, दिया था, तो आप मतलब एक हम्म, अच्छे उस पे गए थे, ठीक है, कुछ कमियां रहेंगी उसको इस बार आप रेक्टिफाई कर रहे हो, दैट्स अ गुड पॉइंट, ठीक है।
बाकी ठीक है वैसे आपसे कनेक्ट ठीक है करेंगे, मेरे पास 10 मिनट होगा, बाकी सब लोग को सोना होना भी है, तो भारती से भी थोड़ा बात कर लेते हैं। ओके बाकी कॉल पे हम लोग करेंगे, ठीक है? ठीक है अभी आप पॉज कर लीजिए, अपना ठीक है म्यूट सर। कर लीजिए। भारती प्लीज अपना टर्न ऑन योर कैमरा। थैंक यू। यस, वेलकम एंड ऑल द बेस्ट। हाँ, चलिए भारती, तो क्या हाल है आपके? सर अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया है। आप कहाँ से हैं भारती? सर मैं हरियाणा के विलेज नामुंडा से हूँ, जो कि पानीपत डिस्ट्रिक्ट में है। पानीपत में। अच्छा अच्छा, अपने बारे में ब्रीफ जी जिससे हम लोग फिर आगे क्वेश्चन करेंगे आपसे। जी जी सर। सर मेरा फुल नेम भारती बटला है, और मैं हरियाणा की सर मैं विलेज नामुंडा, जो कि पानीपत डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है, हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और सर मेरी ग्रेजुएशन आईबीपीजी कॉलेज से कंप्लीट हुई है, जो कि पानीपत में ही है। और सर मेरे घर में मेरे अलावा मेरी मदर एंड मेरा ब्रदर रहते हैं, और मेरी मदर मेरे सोल ब्रेडनर है। और सर करंटली मैं गवर्नमेंट बैंकिंग जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और साथ ही में सर बेसहारा जानवरों का ख्याल रखना और उन्हें खाना खिलाना, या फिर उनको मेडिकल एड प्रोवाइड कराना, ये मेरी हॉबीज है। बढ़िया, अच्छा। तो जी सर। भारती, आपने हमें बताया नहीं कि आप ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है। आपने बोला ग्रेजुएशन किया, क्या किया आपने ग्रेजुएशन में? सर मेरी ग्रेजुएशन बीकॉम में हुई है। बीकॉम में हुई है। आपने जी ये इंटेंशनली नहीं बताया कि मिस कर गए थे, सर क्वेश्चन पूछ लेंगे? यही रीजन था। मैं समझ गया था, ऐसा मत करिएगा, ताकि मिस नहीं ताकि वो करिए। हो। जी। हाँ, तो अच्छा, चल, मेंशन करना पड़ेगा सर समय। बिल्कुल करना पड़ेगा। आपने क्या किया है इसको बताइए ग्रेजुएशन में। चलिए, बाकी ये बताएंगे आपको एंड में। अभी आप मुझे एक बात बताइए, जो कि आप बीकॉम से किया है आपने, तो मैं एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं? जी नहीं नहीं सर, पूछ लीजिए। चलिए, तो एकदम उतना बेसिक, वेल प्रिपेयर नहीं हूँ, लेकिन अटेम्प्ट करूँगी। लायबिलिटीज और एसेट्स में क्या अंतर होता है? सर लाइबिलिटीज बैंक के ऊपर कर्ज होती हैं, जो कि उन्हें एक समय पे वापिस देना पड़ता है, जहां से उन्होंने पैसा उठाया, या फिर जो भी उन्होंने उधार लिया है, तो वो उन्हें एक टाइम पे हमें एक टाइम पे वापस करना पड़ता है। और एसेट सर बिजनेस मेकिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि बैंक बैंक का कह रही सर, सॉरी सर, खुद का एसेट्स हो गया, मान लीजिए कैश हो गया, या फिर वर्किंग कैपिटल हो गया, या फिर बिजनेस का फर्नीचर, और सब फिक्स्ड एसेट्स हो गई। ये सब एसेट्स होती है जो बिजनेस मेकिंग में हेल्प कोई मान करती हैं। लीजिए मैं जो है, मेरा बिजनेस ही ऐसा है कि उसमें मुझे ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूं मैं, तो उसके लिए जो मैं ट्रक ले जी आऊँ, वो ट्रक मेरा लायबिलिटी होगा कि एसेट होगा मेरे लिए? सर, एसेट होगा वो। अगर वो ट्रक उधार पे आया है, तो वो एक लाइबिलिटी होगा, जब तक उधार चुका नहीं दिया जाता, फिर उसके बाद वो एसेट है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप पानीपत से हैं, तो पानीपत हिस्ट्री में जी बहुत सर। ही, मतलब बड़ा नाम इसका रहा है, बहुत ही फेमस सिटी या फिर कह सकते हैं वो प्लेस रहा है। क्या इंपॉर्टेंस था इसका हिस्ट्री जी में, पानीपत का? सर पानीपत आज के समय पे तो बहुत चीजों के लिए जाना जाता है, लेकिन हिस्ट्री की बात की जाए तो सर 3 बैटल हुए हैं जो पानीपत में, उसके लिए पानीपत फेमस है। कौन से 3 बैटल थे वो बताएंगे आप, नाम या फिर कुछ ईयर, कुछ भी याद? जी सर। सर जी सर। सर फर्स्ट बैटल हुआ 1526 में, जो कि अ, अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। और दूसरा सर 1556 में हुआ, जो कि अ, विक्रम हेमराज और हम्म, सर फर्स्ट बाबर के बीच में हुआ, एंड सेकंड अकबर एंड कोई बात विक्रम नहीं। हेमराज, जिन्हें हेमू के नाम से जिन्हें हेमराज हेमू के नाम से जाना जाता है, कोई उनके बीच में हुआ। और थर्ड सर 1671 में अ, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। 1761, 1600, आपको शायद कंफ्यूज कर रहे हैं, 1761। नहीं सर, भारती, एक चीज, 1761। नो इश्यूज। भारती, एक चीज आप मुझे बता सकते हो, तीनों फेमस वॉर्स रहे इंडियन हिस्ट्री में, ये तीनों पानीपत जी में ही क्यों लड़े गए? सर शायद मतलब पानीपत की, जी सर, जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस के चलते, क्योंकि पानीपत दिल्ली के बहुत पास पड़ता है, और
दिल्ली हमेशा से ही सेंटर रहा है जहाँ की जिसकी सल्तनत के लिए लड़ाइयाँ होती आई हैं हमेशा से। तो मेरे हिसाब से यही एक रीजन रहा है। और ओके। और NH1 जो कि मतलब माना जाता है कि यहाँ के आसपास की जो एरिया है बहुत फर्टाइल एरिया हुआ करता था। तो इस जगह से आना जाना बहुत होता था, तो ये रास्ता पड़ता था उस समय के। ओके। ओके, ठीक है। भारती। आपने जी एसेट एंड लाइबिलिटी की बात की थी अभी। एक मिनट। जी कंटिन्यू कंटिन्यू। प्रतीक कुछ पूछ रहे थे, हाँ पूछ। हाँ हाँ। आपने एसेट एंड लाइबिलिटी की बात की। जी बैंक सर। के लिए एसेट क्या है एंड लाइबिलिटी क्या है? सर बैंक के लिए एसेट्स होती हैं। सर अगर लाइबिलिटीज की बात करें तो बैंक में जो भी डिपॉजिट्स आती हैं जिनमें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है, या फिर बैंक बॉन्ड्स इशू करता है उन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, या फिर बैंक RBI से रेपो रेट पे पैसा उठाता है, उस पे हमें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये सब बैंक की लाइबिलिटीज हो गई। और सर एसेट साइड, अगर बैंक जिसे भी लोन देता है, ताकि लोन हो गया या फिर ओवरड्राफ्ट हो गया या फिर क्रेडिट कार्ड हो गया जिस पर बैंक को इंटरेस्ट मिलता है वापस, तो ये सब बैंक की एसेट्स हो गई। एंड सर इसके अलावा फिक्स्ड एसेट्स की बात की जाए तो बैंक की खुद की प्रॉपर्टी और बैंक में यूज होने वाली एसेट्स सारी फिक्स्ड एसेट्स जिन्हें जिन्हें कहा जा सकता है, जैसे कि मशीनरी वगैरह जो बैंक यूज कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर सिस्टम्स का जो बैंक यूज कर रहा है, वो सब बैंक की एसेट्स हो गई। ओके। एक चीज मुझे बताइए, आपने बीकॉम करा है, कैश जी फ्लो सर। एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या होता है? सर कैन आई टेक अ मोमेंट? श्योर श्योर। सर कैश फ्लो में जब डीलिंग कैश में होती है, मतलब कोई भी बिजनेस डीलिंग कैश में की जा रही है। एंड सर फंड फ्लो जिसमें जैसे कि वर्किंग कैपिटल से पैसा निकल रहा है, फंड या फिर फंड मूव किया जा रहा है, नहीं, या फिर मैं जानना चाहता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या चीज को सिग्निफाई करता है? अगर हम किसी बिजनेस का उसके बैलेंस शीट के बेसिस पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो वो क्या चीज सिग्निफाई कर रहा है उसका? सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज। ओके ओके। क्वेश्चन। सॉरी, भारती एक आई बात एम मुझे नॉट बताएंगे क्या? रिकॉल विजय, अबाउट। जैसे इफ यू वांट टू कंटिन्यू। हर बैंक या फिर जैसे कंपनी है तो अपना क्वार्टरली जब परफॉर्मेंस रिलीज करती है, तो ऐसे SBI भी करती जी है। तो ग्रॉस NPA हमारा कितना है SBI का, कुछ आपको आइडिया है क्या? सर, मैंने सर आपके पास मैसेज भी किया था, मैंने SBI से लिंक कोई डिटेल नहीं पढ़ी है अभी तक। ये मेरा टॉपिक कवर होना बाकी है, तो सर। जी कोई बात सर। नहीं, कोई बात नहीं। वैसे बैंकिंग का बेसिक, जी जैसे आप बेसिक चीजें तो पढ़ के आई होंगी ना, ठीक है, मतलब वैसे बैंकिंग के अवेयरनेस वगैरह। जी सर। जी सर। हमने जी क्वेश्चन सर। पूछा था किसी से तो वो नहीं आंसर कर पाया था, आप बताएंगे क्या करेंसी चेस्ट क्या होता है, करेंसी चेस्ट वाली ब्रांच क्या होती है? सर करेंसी चेस्ट बैंक की वो वाली उस ब्रांच को कहा जाता है जहाँ सर, सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल अबाउट इट। सॉरी। चेक्स आपने पढ़े हैं, चेक्स के टाइप्स पढ़े हैं आपने? सॉरी सर, अभी याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसे बैंक अकाउंट जो होते हैं उनमें दो तरह के डिपॉजिट बताए जाते हैं। एक आपका जैसे कहा जी। जाता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टर्म। जी सर। बहुत बेसिक ब्रॉड जी सर। डिफरेंस है ये, जी सब क्लासिफिकेशन है। तो क्या उसके अंदर में आता है, क्या डिफरेंस होता है बताएंगे आप, टर्म डिपॉजिट और ये अपने डिमांड डिपॉजिट में? सर टर्म डिपॉजिट में उस पैसे को रखा जाता है जिसे कस्टमर लंबे समय के लिए बैंक में जमा करा रहा है। इसमें जैसे FD एंड RD आ जाते हैं। ठीक। और सर डिमांड डिपॉजिट जिसमें मनी का फ्लो, मतलब पैसा आना जाना लगा रहता है बैंक में। कस्टमर फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट नहीं कराता है। अच्छा तो जिसमें आगे जी सर, इसमें करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स आ जाते हैं अपने। जी अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी क्या है, हमारे पास टाइम भी थोड़ा सा कम है, सब लोग को अभी थोड़ा जाना भी होगा। तो आपका रिव्यू करेंगे, शेष कुछ पूछना है तो पूछ के फिर रिव्यू कर दो एक। भारती, आप मुझे FDI के बारे में बता सकते हैं? FDI क्या होता है?
जी सर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एफडीआई बोला जाता है। और इसमें सर बाहर की कोई कंपनी या फिर कोई इंडिविजुअल हम आके हमारी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता है और हमारे यहाँ की शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, या सर यही होता है। तो नहीं, शेयर फॉरेन से मार्केट मन उसमें नहीं इंक्लूड होता है। एक्चुअली क्या होता है, वो अच्छा। एफपीआई होता है जो आप कहना चाह रहे हो, फॉरेन अच्छा पोर्टफोलियो जी सर इन्वेस्टर, जी। वो अलग होता है। अच्छा भारती, अभी रिसेंटली एफडीआई की रैंकिंग में हरियाणा थर्ड नंबर पे आया था आफ्टर महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो आपको क्या लगता है, क्या रीजन है कि हरियाणा इतना मतलब आगे इमर्जिंग है, इवन बिफोर स्टेट्स लाइक गुजरात, जहाँ पे एक्सपोर्ट हब है जो, उससे भी आगे हरियाणा है, तो उसका क्या रीजन रहा है आपके हिसाब से? सर मेरे हिसाब से हरियाणा में दो डिस्ट्रिक्ट जैसे कि गुरुग्राम और फरीदाबाद बहुत बड़े इंडस्ट्रियल एरिया माने जाते हैं। उसके अलावा सर हरियाणा मैन्युफैक्चरिंग में ग्रो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होती है, और सर इसके